السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ ملک میں اب تک کرونا سے مزید 13 اموات کے بعد ہلاکتیں 421 تک جا پہنچی۔ کرونا کے کیسز کی مجموعی تعداد 18,500 سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعظم نے چھوٹا کاروبار امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ عمران خان کہتے ہیں تیل کی قیمتوں میں کمی کا ثمر عام افراد تک پہنچایا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قوم کو کرونا وبا مشکل و مصیبت سے نجات دلائے۔ اسپیکر اسد قیصر کہتے ہیں دعاؤں سے روبہ صحت ہو رہا ہوں۔ شوگر مافیا ہر پارٹی میں موجود ہے، یہ لوگ پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ شہباز شریف کو جیل میں ڈالنے کا جتن کر رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے شیخ رشید کے بیان کو مسترد کر دیا۔ بلاول کو وفاق پر الزامات لگانے یا بیان بازی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شہباز گل کہتے ہیں بلاول بھٹو زرداری خیالی دنیا سے حقیقت میں واپس آ جائیں۔ بھارتی ہائی کمیشن کے سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی ایل او سی پر فائرنگ اور گولہ باری پر شدید احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید۔ نوجوانوں کو ضلع پلوامہ میں سرچ آپریشن کے دوران شہید کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بلیٹن میں بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان بھر میں کرونا وائرس سے اب تک مزید 13 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 421 ہو گئی، جبکہ نئے کیسز سامنے آنے سے مصدقہ مریضوں کی تعداد 18,662 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اب تک سب سے زیادہ اموات خیبر پختونخوا میں سامنے آئی ہیں، جہاں کرونا سے 161 افراد انتقال کر چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 122 اور پنجاب میں 115 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ پاکستان بھر سے اب تک کرونا کے مزید 963 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کرونا وائرس کے حوالے سے پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 3,269 ٹیسٹ کیے تھے۔ صوبے میں 427 میں سے کراچی میں 3,076 کیسز آئے ہیں۔ اب تک 61,020 ٹیسٹ ہوئے ہیں اور مریضوں کی تعداد 7,102 ہے۔ 46 مریض صحت یاب ہو کر گھروں کو چلے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے چھوٹا کاروبار امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ عمران خان نے کہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کا ثمر عام افراد تک پہنچایا جائے، ہر صورت قیمتیں کم کروائی جائیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ احساس کیش پروگرام کی طرح بے روزگاروں کو بھی رقم دیں گے۔ متاثرہ افراد کو تفصیل دینی ہوگی کہ وہ کہاں کام کرتے تھے۔ ابھی تو احساس کیش پروگرام چلتا رہے گا، لیکن یہ جو اب آج میں اناؤنس کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ کوئی نوکری کر رہے تھے، کوئی ریسٹورنٹ میں کام کر رہے تھے، کہیں مزدوری کر رہے تھے اور وہ بے روزگار ہو گئے کرونا وائرس کی یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ تو ان لوگوں کے لیے جو بھی بے روزگار ہے، ہم آج آپ کے سامنے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس دے رہے ہیں، اناؤنس کر رہے ہیں ایک ویب سائٹ۔ اس کے اوپر آپ کوئی بھی رجسٹر کر سکتا ہے، لیکن اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا، کوئی کہیں بتانا پڑے گا کون سے کس کے لیے وہ کام کر رہا تھا اور کب سے وہ بے روزگار ہوا۔ صرف یہ اسے بتانا پڑے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نیو یارک نے بھی تعمیرات کی صنعت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے منفی اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ امیر سے امیر حکومت بھی اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو۔ امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں۔ نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ رہے ہیں، جدھر میرے خیال میں 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے
कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपनी इंडस्ट्री खोली है। वजीर आज़म इमरान खान ने सूबाई हुकूमतों को पैगाम दिया है कि तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाई जाए। ज़िला इंतजामिया के ताउन से नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वजीर आज़म ने हिदायत की है कि हर सूरत कीमतें कम करवाएं और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब सारे अब इसका फ़ायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसलन फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करती हैं, सबकी आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें, क्योंकि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सारी कीमतें बढ़ा देते हैं। अब अगर 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो इसका मतलब सारी चीज़ों की आप कीमतों को नीचे आना चाहिए और आम लोगों की आसानी होनी चाहिए। डॉक्टर सानिया आपके सामने बता देंगे एड्रेस। कोरोना वायरस का शिकार होने वाले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि अल्लाह ताला कौम को कोरोना वबा मुश्किल और मुसीबत से निजात दिलाए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। अपने वीडियो पैगाम में स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि दुआओं से सेहतयाब हो रहा हूँ, ये एक इम्तिहान है और अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। उनका मजीद कहना था कि वबा का मुकाबला सब्र, इस्तकामत और हौसले से करेंगे। अल्लाह वबा को हमारे मुल्क के लिए नेक फाल बनाए। मौजूदा वक्त में एक नफसियाती जंग बन गई है। अल्लाह कौम को कोरोना वबा मुश्किल और मुसीबत से निजात दिलाए। कुदरत की तरफ से जारी इम्तिहान का हमें सब्र और इस्तकामत से सामना करना है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कहना है कि वज़ारत इत्तलात में बेहतरीन टीम आई है। पर्दे के आगे शिबली फराज हैं और पीछे बाजवा हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए शेख रशीद अहमद का कहना था कि नवाज शरीफ के बाद अब फिरदौस आशिकवान भी कहेंगी मुझे क्यों निकाला। शुगर माफिया हर पार्टी में मौजूद है। ये लोग पार्टी को चंदा देते हैं। कोई काबीना ऐसी नहीं देखी जिसमें शुगर और आटे वाले ना हो। लेकिन इमरान खान चीनी आटा माफिया के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ेंगे। और अगर हमने IPP को छोड़ दिया, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, ये हर पार्टी को चंदा देते हैं। IPP एक ऐसी पार्टी है जो हर पार्टी को चंदा देती है। हर पार्टी में इसकी शाखें हैं। शुगर माफिया ऐसा माफिया है जो हर पार्टी में मौजूद है। हर कैबिनेट में 3-3 शुगर ओनर मौजूद होते हैं। जब से मैं कैबिनेट में हूं, मैंने नहीं कोई ऐसी काबीना देखी जिसमें वजीर शुगर वाले ना हो, आटे वाले ना हो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान कर्जाखोरों के खिलाफ, IPP के खिलाफ, शुगर के खिलाफ, फ्लोर मिलिंग के खिलाफ फैसला कुन कानूनी जंग लड़ेगा। तहकीकात करने वालों ने वक्त मांगा था, अभी तक IPP का कमीशन नहीं बना। अभी तक तो आप देखें ना, IPP का कमीशन नहीं बना। आप सारे शुगर की बात करते हैं, IPP की क्यों नहीं बात करते? असल मुल्क के डकैत और चोर और गिराकट लोग उसमें डाकू हैं जो हर पार्टी को चंदा देते हैं, मंशा टाइप के लोग। ताकतवर हैं, इसलिए आप सवाल नहीं करते। और शुगर और आटे पे सारों ने एरा रखा हुआ है। शेख रशीद ने कहा कि रेलवे को कोरोना से 5 अरब रुपए माहाना का नुकसान हो रहा है, लेकिन किसी को भी रेलवे मुलाजमत से नहीं निकाला जाएगा। मंजर-ए-आम पर आने वाला नैब ऑर्डिनेंस का मुसवदा जाली है। ओपोजिशन नैब कवानीन में जो तरमीम चाह रही है वो मुमकिन नहीं। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री को, मैं ये नहीं कहता कि मैं फाइनेंस का बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन अगर आप रेलवे को दे दें तो हम अपना बजट खुद बना सकते हैं। हम एक ग्रेड के बजट के इजाफे के साथ अपना PSDP खुद बनाएंगे। एक ग्रेड के तमाम रेलवे मुलाजमीन का इजाफा मेरा ख्वाहिश है, और मैं आपको रोज़े में ज़बान दे रहा हूँ, किसी मजदूर को और किसी अफसर को रेलवे से नहीं निकाला जाएगा। मेरे मौक्किल बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ के सितारे गर्दिश में हैं। शहबाज शरीफ बाहर जाने के लिए जतन कर रहे हैं। ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और टार्जन की वापसी होगी। क्या पिद्दी का शोरबा। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा, बेफिक्र रहो। और टार्जन बनने जा रही है नैब। और ये जो बड़े बड़े लोग अपने आप को समझ रहे हैं कि वो बच गए हैं और वो जनाब अली महफूज हाथों में, अल्लाह ही जानता है। लेकिन मेरे मोकल ये कह रहे हैं कि ईद के बाद नैब टार्जन बनने जा रही है और टार्जन की वापसी है। थैंक यू। मैंने 6 अरब इस साल कम करना था।
मेरा टारगेट है। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब नियाजी गठजोड़ शहबाज शरीफ को जेल में डालने का जतन कर रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली राना सनाउल्लाह का कहना था कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का बयान मुस्तरद करते हैं। शेख रशीद जैसे सियासी गीदड़ ही नैब नियाजी गठजोड़ को टार्जन समझ सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ की असल ताकत पाकिस्तान के अवाम है, अल्लाह के सिवा किसी का खौफ नहीं। पूरी की पूरी हुकूमत शहबाज शरीफ के खौफ में मुब्तला है। सियासी यतीमों के सितारे गर्दिश में हैं, इसलिए चीखें निकल रही हैं। PTI के रहनुमा शहबाज गिल का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से वफाक पर इल्ज़ामात लगाने या बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। PTI के रहनुमा शहबाज गुल ने अपने ट्वीट में बिलावल भुट्टो जरदारी को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क का लॉकडाउन कोई वीडियो गेम का बटन नहीं कि बिलावल भुट्टो ने दबा दिया और सब निजाम रुक गया। ख्याली दुनिया से हकीकत में वापस आए। कराची के सिर्फ 11 यूसीज में लॉकडाउन का फैसला हुआ, लेकिन अमल दरामद नहीं करवा सके और बातें पूरे मुल्क के लॉकडाउन की करते हैं। अब बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। शहबाज गुल का कहना था कि अवाम जानते हैं कि वफाक पूरे मुल्क में गैर सियासी बुनियादों पर अरबों की इमदाद तकसीम कर रहा है, जिसका बड़ा हिस्सा सिंध को दिया गया। अवाम की ये अमानत बराह रास्त ही तकसीम होगी। याद रखें, हम खयानत नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सफारतकार को दफ्तर खारजा तलब करके कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग और गोलाबारी पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दफ्तर खारजा से जारी बयान के मुताबिक दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार को तलब करके कंट्रोल लाइन के हाजी पीर और संग सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग और गोलाबारी की शदीद मजम्मत की गई। भारतीय फौज की फायरिंग से LOC के गांव ख्वाजा बांडी की रिहायशी खातून शदीद जख्मी हुई। सिफारतकार को बताया गया कि भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर तसलसल से शहरी आबादी को भारी असले से निशाना बना रहे हैं। भारत की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। भारत 2003 के जंगबंदी मुआहदे का एहतराम करे। मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन के दौरान भारतीय फौज की जहारियत में मजीद 2 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जन्नत नजीर वादी के जिला पलवामा में भारतीय फौज ने दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके घर घर तलाशी ली, जिसके दौरान खवातीन के साथ बदतमीजी की गई, बुजुर्गों और बच्चों को हरासा किया गया और नौजवानों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान काबिज भारतीय फौज की फायरिंग से 2 निहत्ते कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए, जबकि एक घर को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। काबिज भारतीय फौज ने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए लाशों को अहले खाना के हवाले नहीं किया। वाज़ेह है कि मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता 15 रोज के दरमियान भारतीय फौज की फायरिंग से शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 10 हो गई है। सर्च ऑपरेशन के नाम पर चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना मामूल बनता जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।